So, good evening, students. This is the lecture number 3. ये तीसरा लेक्चर होगा किसका? ये जो हमने टॉपिक शुरू किया है लैमिनार फ्लो और विस्कस फ्लो, राइट? तो इसका आज जो टॉपिक है दैट वी विल स्टार्ट, जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स. फ्लो of viscous fluid between the two parallel plates, right? Two parallel plates. So this is our topic today. इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स थे दो, उसमें मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था कि व्हाट इज द लैमिनार फ्लो और यू कैन से विस्कस फ्लो. उसका सारा इंट्रोडक्शंस कंप्लीट था और किन किन कंडीशंस के ऊपर ये काम करता है, डेफिनेशंस क्या है, इसका कौन सी कंडीशंस हैं, व्हाट द इफेक्ट वी विल गेट when the fluid is passing through or flowing in the closed conduit, you can say circular pipe or the parallel plate, you understand? And then in that case, जो previous lecture था, the topic is the lecture number 2, flow of viscous fluid through the circular pipe D. तो वहां पे हमने इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट किया था कि इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड देन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शंस. So it is also of the same type. This topic, this is also the same type, but only the difference is that here we are taking the two parallel plates and both the plates are fixed. You understand? These plates are kept at a distance t apart. इन दोनों के बीच में जो distance है वो कितना है? Some distance is given there and I am just denoting that distance y t. These two plates are fixed and now the viscous fluid is flowing between these two parallel plates. These are two parallel plates and viscous fluid is flowing between these two parallel fixed plate. तो इस केस में भी but we have to find out, इसमें हमें पहला तो आपका what we have to find out that हमें फर्स्ट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस केस में velocity distribution we have to find first. Second, we have to find shear stress distribution, right? And then the pressure difference रेशो भी फाइंड आउट करेंगे हम, रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज velocity. This ratio we have to find out maximum velocity to average velocity, and then pressure drop or pressure difference, pressure drop between the section.
pressure drop or pressure head between the sections, right? So these parameters we have to find out. So these parameters in this case also we have to find out. Velocity distribution इसकी कैसे होगी when the fluid is flowing through the two parallel plates which are fixed and their distance is t. Between them the distance is t. Shear stress distribution we have to find out. Ratio of maximum velocity to average velocity and pressure drop or pressure head between the sections. कोई दो सेक्शन है उसके बीच में हमें प्रेशर ड्रॉप या प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है. सेक्शंस ऑफ लेंथ L यू कैन से उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ L. So it is almost same. The derivation is same. Everything is same. But only when we use the boundary conditions, there are some difference in that. तो इस केस में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल we have just considered the fluid element here, right? Fluid element, its length is delta x and its width is delta y, and the thickness of the fluid element that is taken as unity in the z direction. जो z direction में ले उसकी आपकी thickness होगी वो क्या होगी? Unity होगी in the z direction like this. Suppose if it is like this, right? This is your direction. It is just like this, right? So this direction you can say this direction is z direction, right? j आपकी डायरेक्शन को होगी z direction. This is your x direction, this is your y direction, and this is your z direction like this, right? So the thickness of this is taken as unity, right? तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम. Let us find out first velocity distribution in this case. You understand? So consider the fixed plates parallel to each other. ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या है? That is parallel and kept at a distance of kept at a distance of t apart. So इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज t. दो प्लेट कंसिडर करें एंड दिस टू प्लेट्स बोथ आर फिक्स्ड और जो इनके बीच में दे आर द पैरेलल प्लेट्स and the distance that is t in between them. You understand? Now consider, आप इसमें फ्लूइड एलिमेंट एक कंसिडर करें. कंसिडर द फ्लूइड एलिमेंट
ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स बेड्थ इसकी कितनी है, बेड्थ दैट इज टेकन एज डेल्टा बाई एंड थिकनेस, इसकी थिकनेस जो जेड डायरेक्शन में होगी, थिकनेस इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो थिकनेस है इसकी, that is taken as unity. You understand? So these is the parameters which I have taken the fluid element here. Fluid element आप कंसिडर करें जिसकी लेंथ जो है डेल्टा एक्स है, विड्थ इसका डेल्टा वाई है एज शोन इन द फिगर, एंड थिकनेस जो है वो जेड डायरेक्शन में है, यूनिटी है, जहां पे आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही है, इसका फ्रंट व्यू से एलिवेशंस के ऊपर है, तो यू विल नॉट गेट द थिकनेस हेयर, राइट। तो थिकनेस नहीं है, तो थिकनेस एज आई ड्रॉन हेयर दैट इज इन द z डायरेक्शन एंड दैट इज टेकन एज यूनिटी। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, नाउ सेम चीज वी हैव टू फाइंड आउट। So it is having the face A, B, C, D. Suppose fluid element that is A, B, C, D. इसके नेमिंग कर लेते हम. So this is A, this point is B, this point is C, and this point is D. Right? A, B, C, D. जहां से करिए ए बी, इधर से क्लॉकवाइज से कर रहे थे, ए बी सी एंड डी, कोई भी नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी। सो दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट ए बी सी डी। अब देखिए, प्रेशर, पहले तो क्या फाइंड आउट करते थे हम, प्रेशर इंटेंसिटी, pressure intensity on face AB। AB फेस के ऊपर जो प्रेशर इंटेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू P, राइट। सेकेंड, प्रेशर ऑन फेस CD। तो प्रेशर ऑन फेस CD, जैसे आपको कल भी आपने किया था, दिस इज P प्लस डेल P अपॉन डेल X इंटू डेल्टा X। लेंथ कितनी है X डायरेक्शन में, डेल्टा X। यू अंडरस्टैंड? तो शेयर स्ट्रेस, सपोज शेयर स्ट्रेस हम फेस BC के ऊपर, शेयर स्ट्रेस on shear stress on BC, right? This is tau. This is tau, and shear stress on AD. Shear stress on face AD, ये फेस BC था, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ प्लस अपॉन डो वाई इंटू डेल वाई, राइट। देखिए, शेयर स्ट्रेस जो है इस फेस के ऊपर इतना है, तो शेयर स्ट्रेस आपका क्या है, वर्टिकल ये चेंज होगा, यू अंडरस्टैंड, इन द वाई डायरेक्शन। शेयर स्ट्रेस जो का होगा किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा शेयर स्ट्रेस। सो इफ द शेयर स्ट्रेस ऑन द फेस BC or CV, you can say that is tau, then the shear stress on the face AD, इस फेस के ऊपर कितना होगा,
इसका जो जहां से लेके जहां तक जो आपका विड्थ है दैट इज डेल्टा वाई, टाउ इज द shear stress here प्लस dou tau upon dou y because it is changing with respect to y. You understand? Shear stress that is changing with respect to y. So this is del tau upon del y into del y. Total distance कितना है ये del y. You understand? And इसमें क्या है? Shear stress are opposite to each other. ये इनका जो डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा, राइट? तो ये shear stress जो आपका फेस बीसी के ऊपर है और एडी पे है आर ऑपोजिट। यू अंडरस्टैंड? जो डायरेक्शन ऑफ द shear stress क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो ये आपकी स्ट्रेसेस, प्रेशर, इंटेंसिटी जहां पे फेस ए बी और सी डी के ऊपर, और स्ट्रेस जो आपकी फेस बी सी एंड ए डी के ऊपर, वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव रिटन हियर लाइक दिस, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या करते हैं हम लोग? हम फोर्सेस अब फाइंड आउट करेंगे with respect to the pressure or the shear stresses on the face. So first of all we will take the face AB. तो जो आपका AB face होगा, right? So pressure force पहला, फर्स्ट pressure force on face AB, ये किसके बराबर होगा? डेल्टा बाई, दिस इज द हाइट, आर यू कैन से दिस इज द हाइट ऑफ दिस फेस, राइट? एंड जो फेस है इसका जेड डायरेक्शन में इसकी थिकनेस कितनी होगी? विड्थ इसकी कितनी है? बाई है, और जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी? यूनिटी वी हैव टेकन। तो प्रेशर फोर्स आपकी क्या आएगी? पी। एरिया क्या है? व्हाट इज योर एरिया? डेल्टा बाई इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? जो एरिया होगा वो आपका होगा डेल्टा बाई इंटू 1। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सपोज करो ये आपका फेस है, दिस इज योर फेस लाइक दिस। तो मैं इस फेस के ऊपर फाइंड आउट करना है, ये इस तरीके से फेस होगा ये, राइट? इस तरीके से आपका फेस होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? जहां से लेके जहां तक, ये क्या है? डेल्टा वाई है, और जहां से लेके जहां तक क्या है? 1 है, थिकनेस इज 1। सो एरिया इज डेल्टा वाई इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? एरिया क्या आएगा? फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इंटू एरिया। ये लिख लेते हैं P इंटू डेल्टा वाई इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? तो ये आ गया प्रेशर फोर्स ऑन ए बी, प्रेशर फोर्स ऑन ए बी। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड दिस? सेकंड, प्रेशर फोर्स ऑन फेस सी डी। तो प्रेशर force on face CD. So pressure force on face CD, ये क्या आएगा? प्रेशर क्या था? P प्लस डेल P अपॉन डेल X इंटू डेल्टा X। इसको पूरे को ब्रैकेट में रखो, ये आ गया आपका प्रेशर, और एरिया सेम है डेल्टा वाई इंटू 1। दिस इज डेल्टा वाई इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी आ गई प्रेशर फोर्स ऑन फेस सी डी। यू अंडरस्टैंड? तो ये प्रेशर फोर्स ऑन फेस। अब ये जो फेस है आपका बीसी, जहां पे शेयर स्ट्रेस है तो यहां पे शेयर फोर्स होगा। तो शेयर फोर्स कितना होगा यहां पे? शेयर फोर्स थर्ड,
shear force on face BC, shear force on face BC कितना होगा? दैट इज टाउ इंटू एरिया, ये हो गया शेयर स्ट्रेस कितना है? BC को टाउ। एरिया देखो कितना होगा, ये फेस है आपका BC, लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स, और इसमें थिकनेस इसकी कितनी आएगी? यूनिटी। यू अंडरस्टैंड? ये फेस आपका इस तरीके से बनेगा ना, ये फेस आपका इस तरीके से बनेगा, ये डेल्टा एक्स है अगर, राइट, ये आपका आ गया डेल्टा एक्स और जे आपका आ गया 1। तो एरिया क्या आएगा इसका? इस फेस का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फेस? डेल्टा एक्स इंटू 1, जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज डेल्टा एक्स इंटू 1, डेल्टा एक्स इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? तो ये आ गया शेयर फोर्स ऑन फेस BC, and like this shear force on face AD, shear force on face AD। तो शेयर स्ट्रेस क्या थी यहां पे? टाउ प्लस डो डेल टो 1 डेल वाई, टाउ डेल टो डेल वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई, और एरिया क्या? दिस इज डेल्टा एक्स इंटू 1। यू अंडरस्टैंड? तो ये शेयर फोर्स ऑन द फेस एरिया। जहां तक आप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, जहां तक चीजें आपको सारी क्लियर हैं, क्या किया मैंने? व्हाट वी हैव डन, वी आर just finding the velocity distribution, shear stress distribution, maximum velocity and the pressure difference when the viscous fluid is flowing or passing between the two parallel plates which are fixed and they are kept at a distance of t, राइट। ये दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो T है, और इसके बीच में से क्या है? फ्लूइड आपका, विस्कस फ्लूइड या लैमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो, इसके बीच में से आपका हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? अब वी हैव टू फाइंड, जस्ट लाइकवाइज जो सर्कुलर पाइप के केस में जैसे हमने किया था, इसमें भी हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट कि इस केस में अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, फिक्स्ड हैं, पैरेलल हैं और कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसके बीच में अगर आपका फ्लूइड पास करता है तो उस केस में आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एट डिस्टेंस वाई? सपोज हम फाइंड आउट भी करेंगे यहाँ पे, एंड देन वी हैव टू फाइंड द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, उसकी क्या इक्वेशन है, एंड देन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड? एंड मोर ओवर लास्ट वन इज दैट द प्रेशर डिफरेंस और द प्रेशर हेड बिटवीन द टू सेक्शन, से दे आर एट L मीटर अपार्ट और L सेंटीमीटर अपार्ट, वट एवर इट इज। सो फॉर फाइंडिंग दैट हमने क्या किया? द फ्लूइड इज फ्लोइंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, we just consider a small fluid element जिसका लेंथ क्या था? डेल्टा एक्स, उसका लेंथ मैंने ज्यूम किया,
डेल्टा वाई मैंने अज्यूम किया उसका विड्थ है, एंड थिकनेस दैट इज टेकन एज यूनिटी मींस 1 इन द जेड डायरेक्शन, राइट। तो ये तो हो गया जो फ्लूइड एलिमेंट की हमने वी हैव टेकन उसकी जो डिमेंशंस थी, दैट इज द डिमेंशंस देयर। Same procedure will be followed here also as we have done in case of the circular pipe when the fluid is flowing in that. तो वहां जहां पर भी आप देखिए you will get the this phase AB phase CD phase जहां पे फ्लूइड आपका फ्लो कर रहे थे, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो इस फेस के ऊपर तो प्रेशर मैंने अज्यूम किया, कंसिडर किया, लेट P is the pressure at this phase. So as I told you, when the fluid is flowing from one section to another section, there will be the reduction in the pressure. You understand? तो जो इस सेक्शन के ऊपर होगा वो इस सेक्शन के ऊपर जो आपकी CD सेक्शन है या CD फेस है, इसके ऊपर आपका प्रेशर जो है चेंज होगा, राइट। वो कितना होगा? P plus this is moving in the x direction and the length of the fluid element that is delta x. तो P प्रेशर हो गया यहां पे, और उसके बाद किस रेट से ये चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज डेल P अपॉन डेल x इनटू डेल x. सो दिस इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, एंड दिस प्रेशर इज हैविंग द opposite direction or the negative value because pressure that always act perpendicular to the face. तो जैसे ये फेस था तो जहां पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस फेस का, तो इस तरीके से एक्ट कर रहा था। एंड व्हेन द फ्लूइड इज गोइंग आउट फ्रॉम दिस फेस, द pressure of the fluid or the liquid that will act on the face CD that is in the perpendicular direction. So it means that the direction of the fluid or the liquid on this face CD that is opposite to the direction of the fluid, direction of the pressure on the face AB. You understand? तो ये जो आपकी डायरेक्शन होगी प्रेशर फोर्स की, ये क्या होगी? जब वहां पर नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव हमने अज्यूम किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव, सो डेफिनेटली ये अपोजिट है, तो दिस इज नेगेटिव। यू अंडरस्टैंड? नाउ कम टू दिस shear stress. So I say that the shear stress on this face BC that I have taken as tau. You understand? तो shear stress जो फेस AD के ऊपर होगा, अब देखिए shear stress जो है ये वर्टिकल वेरी करेगा आपका। You understand that? From point to point. जैसे कल हमने किया था कि अगर shear stress इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे y की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे, या जहां से फ्रॉम द फिक्स्ड एंड से y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपका shear स्ट्रेस जो है वो वेरी करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। सो इट मींस दैट द shear स्ट्रेस दैट डिक्रीजेस इन द y डायरेक्शन। तो इसलिए जो shear स्ट्रेस था, अगर टाउ shear स्ट्रेस इस सेक्शन के ऊपर है, इस फेस के ऊपर है, तो इस फेस के ऊपर कितना होगा? टाउ। इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा टाउ प्लस डेल्टा टाउ अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई किस लिए होगा? डेल्टा वाई इज द विड्थ ऑफ दिस। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इस तरीके से हमने एंटर द डायरेक्शन हियर। shear स्ट्रेस अगर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में होगा, बोथ आर हैविंग द डिफरेंट यू कैन से पोजीशंस। इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा है तो ये आपका टाउ जो प्रेशर फोर्स shear फोर्स होगी इसमें, ये आपकी नेगेटिव होगी और ये आपकी पॉजिटिव होगी। यू अंडरस्टैंड? तो इनसे आपको सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन वी हैव फाइंड आउट। नाउ कम टू द डेरिवेशन पार्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, आई एम गोइंग टू रब इट। सो इसको नोट करें और नोट करने के बाद नेक्स्ट देखिए।
अच्छा, कंडीशंस सेम आएगी जहां पे. नाउ फॉर स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, स्टडी फॉर एंड यूनिफॉर्म फ्लो. क्या कंडीशन थी? नो एक्सलेशन. No acceleration in the fluid molecules, right, which are flowing through the pipe. तो इसमें acceleration क्या होगी? नहीं होगी. So it means that the forces, sum of the forces, you can say, sum of the forces, this is equal to sum of the forces in the direction of flow. Sum of the forces in the direction of flow is equal to 0. ये conditions आपने याद रखनी. You understand? For the study of the uniform flow, as you know that there is no acceleration in the fluid molecules which are flowing through this parallel plate, right? So then some summation of the forces in the direction of flow, that is taken as 0. You understand? ये 0 के ऊपर बराबर है. तो इसमें अब देखिए, सम ऑफ फोर्सेस हमने लेना है. तो पहली फोर्स क्या थी? AB के ऊपर, दैट इज P इंटू डेल्टा बाई into delta 1, right? This is one force on the face AB. अब फेस CD के ऊपर क्या था कि माइनस अपोजिट फोर्स थी, ये माइनस आ गया यहां पे, ब्रैकेट कर लीजिए, P प्लस डेल P अपॉन डेल X इंटू डेल X, राइट? राइट, इनटू एरिया क्या होगा इसमें? दैट इज डेल्टा वाई इंटू 1, डेल्टा वाई इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज. यू अंडरस्टैंड? नाउ यू कम टू दिस फेस BC के ऊपर क्या होगा? माइनस, इसकी डायरेक्शन आई हैव टेकन नेगेटिव डायरेक्शन ली है. दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. That is tau into delta X into delta 1, right? Plus tau plus delta tau upon delta Y into delta Y. You understand? Into delta X into delta X into 1, and this is equal to 0. You understand? Check कर लीजिए. I have written it right. तो फेस AB प्रेशर क्या था यहाँ पे? P था. तो प्रेशर फोर्स क्या हुआ? P into delta Y into 1. Delta Y is the width and 1 is taken as thickness of this face, and then it comes here minus P plus del P upon del X into delta X. ये तो हो गया आपका प्रेशर into delta Y into 1. Okay, it's all right. Minus, because tau is I have taken from right to left, and it is taken as negative here. So minus tau into delta X into delta 1 plus, this is as I told you, the shear stresses they are in the opposite direction, plus, तो इसमें प्लस साइन आएगा, tau plus delta 1 by delta by into delta by, yes, this is equal to 0.
अब इसको आप खोल लीजिए, यू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, तो पहला आ गया P इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वन, राइट। अब इसे खोलिए, माइनस है, माइनस P इंटू डेल्टा वाई इंटू माइनस P डेल्टा वाई इंटू वन। नाउ कम टू दिस, माइनस del P upon del X into delta X delta Y into 1, राइट। आप ये आ जाएगा सीधा माइनस टाउ डेल्टा एक्स इंटू वन। अब इधर आ जाइए, प्लस टाउ इंटू डेल्टा एक्स इंटू वन, टाउ एंड प्लस del, this is del tau upon del y into delta y into delta y into delta x into 1, right, and this is equal to 0, right। तो ये सारा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसको इस तरीके से ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल होगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन आउट। अच्छा, दिस वन एंड दिस वन ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या बचा? सो वी लेफ्ट दिस माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू वन, तो इसको रहने दीजिए, राइट। चलो लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल टाउ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स इंटू वन। ये इक्वल के इस साइड पे गया तो इट इज हैविंग द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये आपका प्लस हो गया, दोनों का ये कैंसिल, राइट। एंड डेल एक्स डेल वाई वन, डेल एक्स ये भी कैंसिल हो गया, यू अंडरस्टैंड। दस but we got del p upon del x, this is equal to del tau upon del y, right। so इस इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें what we got ये मिला। अब ये क्या है? what is this? del p upon del x, what is this? and del tau upon del y, what is this? so del p upon del x, as you know, this is the pressure gradient, right। तो del p upon del x क्या था? ये आपका pressure gradient है, and del tau upon del y, this is equal to shear stress gradient। तो जहां पे आपने देखा तो जहां से एक कंक्लूजन हमें मिला, कंक्लूजन हमें क्या मिला?
In a conclusion, we got that in a steady uniform laminar flow, in a steady uniform laminar flow. In a steady uniform laminar flow, pressure gradient in x direction, this is equal to that shear stress gradient in bi-direction, that is normal to the direction of flow. You understand? That is normal to the direction of flow. You understand? तो ये चीज हमें मिली कि जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट तो ऑलवेज इन एक्स डायरेक्शन ही होगा एज द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द एक्स डायरेक्शन. सो प्रेशर ग्रेडियंट जो आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट इन द वाई डायरेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया था, शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट आपका किस डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस आपका जो वेरी करेगा वो किस डायरेक्शन में वेरी करेगा, दैट वेरीज इन द वाई डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड? तो जो प्रेशर ग्रेडियंट आपका एक्स डायरेक्शन में होगा वो आपका शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट वाई डायरेक्शन के बराबर होगा. देखिए, यू अंडरस्टैंड दैट? कहने का मतलब जितना जितना प्रेशर आपका रिड्यूस करता जाएगा, जितना उसका प्रेशर ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में होगा, इन द सेम वे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो आपका वेरी करेगा इन बाई डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जितना प्रेशर आपका वेरी करेगा, जिस नेचर से प्रेशर आपका वेरी करेगा इन एक्स डायरेक्शन, तो तभी तो ये आपको प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा इन एक्स डायरेक्शन. विद द सेम नेचर यू कैन से योर शियर स्ट्रेस gradient you will get in the bi-direction. तो bi-direction तो आपको पता ही है, that is the direction normal to the direction of flow. You understand? तो first conclusion we have got here. अब इस equation को हम use करेंगे, right? ये जो आपकी equation है, del P upon del X is equal to del tau upon Y, इसको हम use करके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को निकालेंगे. यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ये तो हो गया था एक. इसमें एक सेकंड भी कंक्लूजन जहां से निकल आएगा, जहां से देखिए जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. प्रेशर ग्रेडियंट जो आपका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. और जो आपका शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. इसमें वाई नहीं है, यहां पे आप देखिए डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो वाई का जो भी नेचर होगा उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाई, एंड यो शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. यू अंडरस्टैंड? नाउ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां तक आप नोट कर लिया, ये कंक्लूजन भी नोट कर लिया.
तो अब इसको मिटाएंगे। अब आ जाइए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको लिखा था कि पहला पैरामीटर हम निकालेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ फ्लूइड, viscous fluid, when it is flowing through the two fixed parallel plates, right? So velocity distribution. Now see here, velocity distribution is obtained by using that equation जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, क्या था, del P upon del X, this is equal to del tau on del Y, right? This is the equation we got. जहां पे अब देखिए, according to Newton's law of viscosity, क्या था, shear stress, that is tau is equal to mu into du upon dy, right? This is equal to tau du upon dy. So this is according to the law of viscosity. You understand this? तो therefore जहां से कर लीजिए आप, del P upon del X, ये del upon del Y ऐसे ही रहा, तो tau की जगह we can use this mu into, that is mu into du upon dy. You understand? Mu into du upon dy. And this is equal to, ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू, या क्या गया, डी स्क्वायर, ऐसे कर लो से, म्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर. We can write this like this, d square u upon dy square. We can write it like this. आप del u upon del y लिख लीजिए, mu into, because we are taking a small strip, so del u upon del y. तो जहां पे del कर लीजिए आप, और जहां पे भी आपका del u स्क्वायर upon del y स्क्वायर, राइट? तो ये आपका इक्वेशन आ गया, dou p upon dou x, this is equal to mu upon this. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप इन दोनों साइड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो पहले आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को एक साइड के ऊपर ले लें, सो ये आपका आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू 1 upon mu del p upon del x. You understand? This is clear? Now integrating both side. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जे आपका अगर है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स. So this is equal to इसको ये कांस्टेंट है तो जो सारा ही लिख लिए आप 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स. यू अंडरस्टैंड? तो ये कितना आ जाएगा आपका? दैट इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन, एक डिफ्रेंसिएशन कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स. राइट? सिंस ये जो आपका क्या है डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. ये अभी पीछे लिखा था हमने. सिंस ये लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, इसलिए इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. तो इसका इंटीग्रेशन साइन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा भी लिख लेते आप. राइट? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा इंटीग्रेट करो आप इसको. राइट? अगेन इंटीग्रेटिंग इसमें थोड़ा सा इसमें ये था आपका इंटीग्रेटिंग दिस, एंड ये आपका आया दिस इज डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू वाई. बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो ये आगे 1 होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन पाई होगा प्लस C1. राइट? C1 क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच आई हैव टेकन हियर. दिस इज द इक्वेशन. ये आगे अब फिर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करें. दिस इक्वेशन जो आपको मिली थी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. राइट? ये वाली इक्वेशन. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या होगा? ऐसे कर ले, डेल यू अपॉन डेल वाई दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू वाई. राइट? प्लस C1. You understand? Up again integrating both sides and you will get this equation, that is therefore u is equal to, right, क्या आएगा? 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स. ये तो कांस्टेंट चीजें हैं.
y का आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 इसका इंटीग्रेशन y एंड प्लस, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई आफ्टर इंटीग्रेशन। सो वी गॉट दिस फाइनल इक्वेशन u की, बट हियर we have to find the values of the constant of integration. C1 पहला constant of integration था and C2 the second constant of integrations, because we have integrate that equation 2 times. तो जहां पे 2 constant of integrations आपके पास होंगे, so by using the boundary conditions, हम boundary condition को यूज करके we will find the value of C1 and C2. हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यू अंडरस्टैंड। इस इक्वेशन को रहने देते हैं, ये बता दीजिए फाइनल इक्वेशन। अब हमें C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। द वैल्यूज लिख लें ऊपर, द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 आर obtained from boundary condition। C1 और C2 की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशंस। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू 0, पहली बाउंड्री कंडीशन हम लेते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि व्हेन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, व्हेन y इज इक्वल टू 0, ये आपका y है। अगर आपका y 0 होगा, राइट, तो इस केस में इफ योर y इज 0, देन इस केस में आपका जो u होगा, u क्या होगा, ये भी 0। कैसे, देखिए y, when y is 0, it means these are the fixed plates। तो y आपका 0 है, तो हमने लिया कि फ्लूइड दैट इज इन कांटेक्ट विद द फिक्स्ड प्लेट, दैट इज प्लेट इज एट रेस्ट। तो जैसे पहले चैप्टर में मैं टॉपिक लेक्चर में बताया था कि व्हेन द प्लेट इज एट रेस्ट, the fluid which are in contact with the plate at rest, those fluid molecules or element particles you can say, they are also at rest। तो जब मैंने y is equal to 0 लिया, so this is the condition that is on the plate, you understand। velocity of the fluid on the plate, which plate, the plate which is at rest, तो velocity of the fluid on the plate that is equal to 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशन होगी when y is equal to 0, u is equal to 0। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि हमें दो वैल्यूज निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशंस की, C1 और C2, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम अगर लेते हैं y is equal to t, अगर y की वैल्यू मैं t के बराबर लेता हूं तो फिर ये फिक्स प्लेट के ऊपर है, राइट। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट ऑन दिस फिक्स्ड प्लेट, और द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स which are in contact with the upper fixed plate which is at rest, that is also equal to 0। तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। You understand this? When y is equal to 0, u is equal to 0 and y is equal to t, u is equal to। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन इसमें पुट करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पुट द फर्स्ट कंडीशन, पुट फर्स्ट कंडीशन इन द इक्वेशन, पुट कंडीशन फर्स्ट इन द इक्वेशन। जो भी आपकी इक्वेशन है ये वाली, इसमें पहली कंडीशन आप पुट करें तो क्या होगा, y में ले रहा हूं 0, तो जब y 0 होगा
तो u क्या होगा 0, ये हो गया 0. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू 0 स्क्वायर बाई यू प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2, राइट. तो इसमें आप देखिए C2 की पहली वैल्यू आ गई इसके बराबर 0. ये C2 हमने फाइंड आउट कर लिया. यू अंडरस्टैंड दैट. पहली कंडीशन को पुट किया तो C2 वी हैव गॉट. अब जे वाली कंडीशन हम पुट करते हैं. When y is equal to t, u is equal to 0. Put this condition in this equation. तो u तो आपका 0 है, जहां पे लिखिए 0. This is equal to 1 upon mu del p upon del x by किसके बराबर है? t के बराबर. तो ये आपका आ गया t स्क्वायर y2, राइट. टी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटू टी बाई 2 प्लस C2, राइट, प्लस C2. तो C2 की क्या वैल्यू है यहां पे? देयरफॉर दैट इंप्लाइज, लिख लीजिए C2 की वैल्यू. C2 दिस इज इक्वल टू, ये सारा इधर चला जाएगा. यू अंडरस्टैंड. C2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 म्यू नॉट C2. C2 तो आपका 0 अभी. C2 तो पुट करो 0. C2 तो ऑलरेडी निकाल लिया. C2 इज इक्वल टू 0, राइट. तो अब देखिए C1 की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी. C1, यस, जहां से देयरफॉर जहां पे कर लीजिए C1 इंटू टी अपॉन बाई, दिस इज इक्वल टू, इधर ले जाइए, -1 अपॉन 2 म्यू 1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर, राइट. सो टी और टी यहां से कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर C1 इज इक्वल टू माइनस जहां पे मैंने इक्वेशंस, व्हाट इज द इक्वेशन हियर? जो आपकी इक्वेशन थी, u इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 बाई प्लस C2. यही इक्वेशन थी. चेक कर लीजिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं दोबारा. चेक करो. यस. तो कंडीशन लिया था y इज इक्वल टू टी एंड u इज इक्वल टू 0. y की जगह हमने t को पुट करना है. ये y का t
छूट गया था मेरे से, तो u आपका 0 है, तो ये पुट करें 1 अपॉन म्यू डो p अपॉन डो x इंटू बाई की जगह t है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 इंटू बाई की जगह t प्लस 0. यू अंडरस्टैंड? राइट? तो C1 हमारा क्या आएगा? नाउ द C1 इज, यह आ गया -1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x इंटू टी स्क्वायर बाई 2. दिस इज इक्वल टू C1 इंटू टी, और t ये कैंसिल हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू आपके पास आएगी, देयरफॉर C1 दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 म्यू इंटू डेल p अपॉन डेल x इंटू t बाई 2. अंडरस्टैंड? तो ये वैल्यू आपकी आएगी C1 की. ये टी बाई 2 कैसे लिखा मैंने? ये 2 तो मैंने ले लिया था, यहाँ पे 2 म्यू लिख दिया, ये तो टी रहेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर -1 अपॉन 2 म्यू, यस, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर दिस इक्वल टी, यस. तो ये आपका आ गया C1 दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी. ये वैल्यू C1 की आई. यू अंडरस्टैंड? दिस इज माई मिस्टेक बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन 2, इसके साथ मैंने ले लिया था, और ये दोबारा टी स्क्वायर बाई 2 लिख रहा था यहाँ पे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन -1 अपॉन 2 म्यू. तो ये आपका C1 की वैल्यू आ गई. यू अंडरस्टैंड दिस? अब जो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू है, वो जो हमारी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. यू अंडरस्टैंड? C1 और C2 हमारी जो इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करें. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन द गिवन इक्वेशन. राइट? सो ये मिटा दीजिए, ये वाली इक्वेशन है C1 की वैल्यू जहां पे रहने दें. तो C1 C2 तो आपका 0 है, तो C1 और C2 की वैल्यू इसमें पुट करें. अब दैट इंप्लाइज U इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू डेल P अपॉन डेल X इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2. व्हाट इज C1? -1 अपॉन 2 म्यू इंटू डेल P अपॉन डेल X इंटू T, और C2 आपका 0 है. यू अंडरस्टैंड? ये आपका वैल्यू है. यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसमें आप कुछ चीजें कॉमन ले लीजिए एंड यू विल गेट द इक्वेशन 1 अपॉन 2 म्यू इंटू डेल P अपॉन डेल X आप कॉमन ले लें, तो इसमें क्या आएगा? U 1 अपॉन जे भी है, ये 2 म्यू हो गया, 1 अपॉन 2 म्यू डेल P अपॉन डेल X, जहां पर भी ये है जहां पे ये है, तो ये चीजें कॉमन आ गई. ये आ गया अंदर वाई स्क्वायर, राइट,
minus t, y square minus t. You understand this? Y square minus इंटू वाई भी था, C1 जे था, एन इंटू वाई तो जे आपकी इक्वेशन आई यू की. यू अंडरस्टैंड दिस? जे आपकी सेम इक्वेशन आ गई. C1 की जे वैल्यू थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1 minus 1/2 mu del P upon del X into T and Y is here, और C2 आपका 0 आ गया. So therefore U is equal to 1/2 mu into del P upon del X Y square minus TY. और अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी आपकी? तो जहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, u इज इक्वल टू माइनस 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एंड द इक्वेशन इज t बाई माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द velocity at the point B, right? At the point Y. This is the equation of the velocity at the section Y. समझाई बात? ये आपकी velocity की equation है at the section Y. और जहां पे आप देखिएगा, अगर इस इक्वेशंस को आप देखिए, जी आप देखिए 2 म्यू आपका कांस्टेंट है, डेल टी अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट है, टी भी आपका कांस्टेंट है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वाई. ये इक्वेशन जो है क्या है? ये वाई क्या स्क्वायर है. तो वाई का स्क्वायर इक्वेशन है, तो इट मीन्स कि दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन. ये क्या है? parabolic equation. And if it is a parabolic equation, it means that velocity distribution in this case, इस केस में भी जो आपका velocity distribute होगा वो क्या होगा? पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा. जो velocity distribution होगा इस केस में, that is parabolically. right? तो अगर ये आपका 2 fixed parallel plate हैं, if these are the 2 fixed parallel plate, right? इनका डिस्टेंस दिया है t, right? तो अगर किसी सेक्शन के ऊपर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लें, सपोज दिस इज अ सेक्शन, एंड जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, ये आपका सेक्शन है, ये सपोज आपकी सेंटर लाइन, जो आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? पैराबोलिक होगी. यू अंडरस्टैंड? जस्ट लाइक दिस. तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होगी. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट, जहां से अगर आप देखें तो एट द बाउंड्री यू हैव सीन दैट वेलोसिटी इज 0. बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी 0 होती जाएगी, और जैसे जैसे हमारा बाउंड्री से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी. और जो सेंटर लाइन वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर, ये क्या थी? सेंटर लाइन वेलोसिटी. सेंटर लाइन वेलोसिटी. तो सेंटर लाइन वेलोसिटी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम.
राइट, सेंटर लाइन वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यह है कि अगर आपका y 0 है, आपका अगर y 0 है तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो अगर आपका y 0 है एट दिस पॉइंट तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और अगर आपका वेलोसिटी y इज इक्वल टू r है, अगर आपका y आपका r के बराबर है, मींस r नहीं, जहां पे t/2 आएगा, अगर आपकी वेलोसिटी t/2 है, बिकॉज t इज द डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द टू प्लेट्स, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, दिस इज t/2। तो जहां पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अगर आपका डिस्टेंस y इज इक्वल टू t/2 है, तो देयरफॉर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी u max, इसको हम सेंटर लाइन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, u max, एंड दिस इज इक्वल टू -1/2 mu del p अपॉन del x t इंटू t/2 माइनस t स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो you can say u max, this is equal to -1/2 mu del p upon del x, क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t स्क्वायर बाई 4, तो 4 एलसीएम है 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 4। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 8 म्यू into del p upon del x into t square. You understand? So this is your maximum velocity. Maximum velocity ये आपकी आ गई। This is your maximum velocity and minimum velocity तो आपको पता है at zero velocity कहाँ पे होगी? At the boundary of the fixed plate। और maximum velocity कहाँ पे होगी? Center line के ऊपर। बिकॉज दिस इक्वेशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो जहां पे है, इस केस में क्या है, पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सेंटर लाइन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इन पॉइंट्स के ऊपर एट द पॉइंट ऑन द फिक्स्ड प्लेट वहां पे वेलोसिटी 0 होगी। तो जहां तक आज जहां पे करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर लिया और उसके साथ साथ मैक्सिमम वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो नेक्स्ट जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और साथ में प्रेशर हेड का डिफरेंस एट द टू सेक्शन और यू कैन से एट सम लेंथ एल के बीच में जो प्रेशर हेड का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो बाकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो जाता है और इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप लोगों के लिए। तो जहां पर ही मैं आज इसका बंद करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं, दैट इज नॉट ए डिफरेंट लेक्चर बट दैट वाज द, अगर ये थर्ड लेक्चर है तो थर्ड लेक्चर का जो अदर पार्ट होगा, पार्ट बी आप कह सकते हैं, थर्ड ए है, थर्ड बी, तो आई जस्ट designate it by 1 2 3 4, so fourth lecture, that is, you can say that is in continuation of this lecture, that is the part of this। तो naturally नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसको करने के लिए आपको इसको अच्छे तरीके से पहले करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी इधर से ही निकालेंगे हम, और साथ में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा, उसमें आप रेडी रहिए, राइट। ओके, थैंक यू।